नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सईद याकूब सरोश, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो किया। वज़ीर आज़म मोदी को देखने के लिए शहर की सड़कें भरी हुई थीं। हालांकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और सड़क के किनारे बैरिकेड्स नस्ब कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी लोग मोदी को देखने के लिए कतार में खड़े हुए थे। नाजरीन, आपको बता दें केरला में भी असेंबली इंतखाबात हैं। कांग्रेस के ज़ेर क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि रियासत में बरसर इख्तिदार CPIM के ज़ेर क़यादत लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में कांटे की टक्कर के दरमियान बीजेपी केरला में भी जीत हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी केरला के कोझिकोड में एक रोड शो किया। केरला इंतखाबात में भी बीजेपी अपना सारा जोर लगा रही है। अमित शाह की रैली में भी काफ़ी हुजूम देखने को मिला। बीजेपी कारकुनों की एक बड़ी तादाद रोड शो में मौजूद थी, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह एक साय वाली गाड़ी पर सवार लोगों के इस्तकबाल का हाथ हिलाकर और नमस्ते करके जवाब दे रहे थे। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आवाम से पूछा कि SIR में कितने लोगों का नाम काटा है। आवाम ने हाथ उठाकर ममता का सवाल का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के मालदा में एक जलसे आम से खिताब कर रही थीं, जो रियासत में मुस्लिम अक्सरियत इलाका माना जाता है। पार्टी जिम्मेदारान को ममता ने हिदायत भी दी कि वो तमाम हज़फ शुदा नामों के लिए इलेक्शन कमीशन में एक अपील दायर करें। SIR আপনাদের অনেকের নাম কেটেছে। এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ, এই ছবিটা ভালো করে তোলো তো, ভিডিও করো, এটাকে ভালো করে হাত তুলুন যাদের নাম কেটেছে। তাহলে ভোট দেবে কে? বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন? সব ভোটাধিকার কেড়ে নেবেন মানুষের? এটা কি হচ্ছে? বিজেপি দালালি করতে গিয়ে গণতন্ত্রের নামে মকারি অফ ডেমোক্রেসি হচ্ছে। হামটি ডামটি শয়তানের দল, অত্যাচারী সরকার, মানুষকে লাইন দেওয়ার সরকার, নাম কাটার সরকার, গণতান্ত্রিক অধিকার কাটার সরকার, অত্যাচারের সরকার, দুরাচারী সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, দাঙ্গার সরকার দিল্লিতে আর নেই দরকার। আগে আপনাদের পরিবর্তন করতে হবে। যাদের নাম কেটেছে আমি দলীয় নেতাদের অনুরোধ করব, শুধু ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করলে হবে না, এটা বড় কাজ। মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি আছে। BLA 1 BLA 2 যেভাবে ভোট তোলার সময় কাজ করেছিলেন, দিল্লি থেকে বসে বিজেপি নেতারা দেখে দেখে সংখ্যালঘুদের ভোট বাদ দিয়েছে। যেখানে তপশিলি অনেক আছে তার ভোট বাদ দিয়েছে, কোথাও আদিবাসী ভোট বাদ দিয়েছে। 250 জনের মধ্যে মারা গেছে, অর্ধেক হিন্দু মারা গেছে, অর্ধেক মুসলমানও মারা গেছে। আগুন যদি লাগে তাহলে একজন হিন্দুর ঘরে লাগবে, আর পাশে মুসলমানের বাড়ি থাকলে তার বাড়িতে লাগবে না। এটা কখনো হতে পারে না। বিজেপি কোনো ধর্ম বিশ্বাস করে না, ওদের ধর্ম একটাই, দাঙ্গা করার ধর্ম, মানুষ মারার ধর্ম। লজ্জা করে না? অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ক্ষমতা থাকলে এইখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করে এই যাদের নাম কেটেছে তাদের সাথে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফোন করে করে নির্দেশ দেন সবাইকে, মুসলিম দেখলেই মালদায় ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো, তিহট্টে ভোট কাটো। এমনকি আমার কনস্টিটিউন্সিতেও 1.5খানা ওয়ার্ড আছে, সেখানেও ভোট কেটে দিয়েছে 40,000 ভোট। ভাবছে কি এইভাবে জিতবে? সব অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়েছে। 5টা রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, তার মধ্যে 506 জন অফিসারের পরিবর্তন করেছে।
শুধু বাংলায় একাই তার মধ্যে 485। এদের কি করা উচিত? মানুষের কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আর মানুষকে বলবো, এর বদলা নিন ভোটের বাক্সে। যাদের নাম ওঠেনি অ্যাপিল করুন ট্রিব্যুনালে। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই কাজটা ব্লক প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে, গ্রাম সভা থেকে শুরু করে, নেতৃত্ব বিন্দু থেকে শুরু করে, আগে যার যার নাম কেটেছে তার অ্যাপ্লিকেশন ট্রিব্যুনালে নিয়ে যান। 58 লক্ষ আগেই কেটে দিয়েছে এআই দিয়ে, সেটা খোলেনি। আর 60 লক্ষ যেটা কেটেছিল তারা জেনুইন ভোটার। এই দেখুন সবাই উপস্থিত আছে। আমি রাস্তায় 5 দিন ধর্ণা দিয়েছিলাম, সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বিচার চাইতে। 60 লক্ষের মধ্যে 22 লক্ষ লোকের নাম উঠেছে। বাদ বাকি যেগুলো বাদ গেছে সেগুলো মনে রাখবেন, আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ট্রিব্যুনালের কাছে। জাজেদের কাছে নিজেরা যাবেন না। এই তো দেখলেন দুটো কমিউনাল পার্টি এসে জাজেদের ঘেরাও করলো, করে পালিয়ে গেল। আর মাঝখান থেকে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা হ্যারাস হচ্ছে এনআইএর নাম করে। তারা 40 জন 50 জন লোকাল ছেলে মেয়েদের অ্যারেস্ট করছে। প্রতিবাদও করা যাবে না, প্রতিরোধও করা যাবে না। ইলেকশন কমিশনের সামনে কেউ ডেপুটেশনও দিতে পারবে না। সব কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষের কণ্ঠ কিন্তু রোধ করা যায় না। সাংবিধানিক অধিকার হচ্ছে আপনার ভোটাধিকার। আপনারাও নিজেরা নিজেরা, আমি তো করছি, আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। ট্রিব্যুনালে নাম পাঠাবেন, দরখাস্ত করবেন। আগে বলুন যদি ভোট দিতে চান, দরখাস্তটা করবেন। করলে বাদ বাকি লয়ার দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। এখানে মালদায় বাচ্চুদাকেও আমরা। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया। आसाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने आसाम को अपना एटीएम बनाया है। राहुल गांधी ने आसाम की हज़ारों एकड़ अराजी सरमायादारों के सुपुर्द कर देने का भी आसाम के बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है। एटीएम बना रखा है आपका। बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना। वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। अदानी सोलर को 18,000 बीघा जमीन दी है एटीएम ने। अंबानी 13,000 बीघा हेमंत और अमित शाह की एटीएम ने। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा एटीएम ने। अदानी पावर स्टोरेज 1400 बीघा। और सबसे मजेदार, बाबा रामदेव उसको एटीएम से 60,000 बीघा जमीन दी गई है। किसकी जमीन है ये रामदेव की जमीन है क्या? ये अदानी की जमीन है क्या? अंबानी की जमीन है क्या? ये असम की जमीन है। ये असम की जनता की जमीन है, असम के किसानों की जमीन है। और इसको सिंडिकेट ने, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर ने आपसे छीनकर इन लोगों को दी है। आप क्या सोचते हो ये फ्री में देता है क्या? ये मुफ्त में जमीन दे रहा है क्या? नहीं भाई, इस जमीन के लिए बीजेपी को, इनके नेताओं को, चीफ मिनिस्टर को ये लोग पैसा देते हैं।
सपोर्ट देते हैं, मीडिया पे टाइम देते हैं। यह आपके प्रदेश में हो रहा है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारतेंडो नाटाया एकेडमी के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए हिंदुस्तान की क़दीम सक़ाफ़त मौसीक़ी के फ़रोग़ पर तवज्जो देने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने मौसीक़ी को हिंदुस्तान की क़दीम सक़ाफ़त भी करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी आसाम इंतखाबात की एक रैली से खिताब करते हुए माजी में आसाम के साथ नाइंसाफ़ियों का दावा पेश किया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तक़सीम हिंद के वक्त आसाम को पाकिस्तान के सुपुर्द कर देने का फैसला लिया गया था। चौहान ने यह भी कहा कि 1961 के बहरान में दरअंदाजों को आसाम में बसाकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली गई थी। क्या दिया कांग्रेस ने, कोई बताए तो? 5 महापाप कांग्रेस ने किए, 5। आज मैं असम के प्यारे बहनों और भाइयों बताना चाहता हूं, ये वो कांग्रेस है 1947 में, 1947 में जब देश के विभाजन के पहले इनने बना लिया था क्या खाम को तो पाकिस्तान में दे दो। मैं भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलाई जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनने जिद की और लड़े, तब आखाम हमारा भारत का हिस्सा बनाइए। पहला महापाप। दूसरा महापाप कांग्रेस ने किया। चीन ने आक्रमण किया 1962 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि आखाम संकट में है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वो ही जाने। पल्ला झाड़ लिया तुमने। और आज मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, किसकी हिम्मत है जो हम की तरफ उंगली उठा के दिखा दे। मोदी जी कहते हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तीसरा महापाप कांग्रेस ने किया, घुसपैठियों के हवाले कर दिया हमारे प्रदेश को। बांग्लादेश से घुसपैठिए आते रहे, हमारी जमीन पे कब्जा करते रहे, हमारे संसाधनों पे हमारे बच्चों की नौकरियां खा गए, रोजगार छीन लिए। और कांग्रेस उनको लाके बसाती रही, इसलिए कि वो हमारे वोट बैंक है, वोट देंगे। वोट की खातिर कांग्रेस ने असम को बेच दिया। बहनों और भाइयों, वोट की खातिर कांग्रेस ने असम को बेच दिया। आज मैं हिमंता जी को धन्यवाद देता हूं। 1,26,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों से मुक्त करा ली। कांजी रंगा तक को मुक्त कराया कामाख्या जी। और आज बीजेपी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, एजीपी, गणशक्ति मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जो सरकारी दवाएं गैर कानूनी तरीके से मुल्क के दारुल हुकूमत मुंतकिल कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों समेत अस्पताल के एक काम करने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया है। मुलजिमीन के पास से पुलिस ने 70 लाख रुपए मालियत की दवाएं भी जब्त कर ली हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हाथों तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने साल 2027 दिसंबर तक तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर मुकम्मल कर लेने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाईकोर्ट की इमारत के अलावा रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स में भी 49 कोर्टों और रिहायशी इमारतें तामीर करने का भी ऐलान किया। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के इस बयान की मजम्मत की, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत तेलंगाना मुनहज़िर मुलाजिमीन के तकर्रुर पर विजिलेंस और महकमा एंटी करप्शन से जांच कराएगी। कविता ने तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी को निशाना बनाते हुए इस्तिफसार किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत अपने ही दौरे इख्तिदार में होने वाली बदउनवानियों की भी जांच कराएगी। कविता ने कहा कि मुलाजिमीन के तकर्रुर के बजाय हुकूमत को कांग्रेस दौरे हुकूमत में होने वाली बदउनवानियों की जांच करानी चाहिए।
ఇక్కడ సింగరేణిలో ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలకు డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తేనే ఆ ఏరియా బాగుపడుతుంది అనుకొని ఏమాత్రం కూడా రూల్స్ పెట్టకుండా రిలాక్స్ చేసి ఆనాడు మనం చేసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల 20,000 మంది పైచిలకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఇవాళ 20,000 మంది యువకులు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ అంతో ఎంతో భద్రతతో ఉన్నారు. వాళ్ళ మీద కన్నుపడ్డది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి. ఏమంటుండ్రు మొన్న బట్టి విక్రమార్క గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎట్లా ఇచ్చిర్రు అంటారు. కనీసం కొంచెమన్న ఆలోచన ఉండాలి. ఎందుకు ఇచ్చినాం అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇచ్చినాం అంటే తెలంగాణలో సఫర్ అయినాం కాబట్టి, సఫర్ అయినటువంటి సందర్భంలో ఆరోగ్యాలు ఓడగొట్టుకొని మొత్తం జీవితం పొడగొట్టుకొని అందులో పనిచేసిన కార్మికులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ కార్మికులు వాళ్ళ కుటుంబానికి రిలీఫ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అన్ని రకాల ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చుకున్నాం ఉద్యోగాలు. అవి ఇచ్చుకుంటాం. అది అప్పుడు ఆనాడు గవర్నమెంట్ పాలసీ. ఎట్లా వ్యతిరేకిస్తావు నువ్వు? ఎట్లా ఎంక్వైరీ చేస్తావు దాని మీద? బట్టి విక్రమార్క గారికి మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ. హెచ్చరిక, సింగరేణితో పెట్టుకున్నాడు ఎవడు బాగుపడలే ప్రపంచంలో. మీరు సింగరేణి కార్మికులు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఎట్లున్నాయని ఎంక్వైరీ చేస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు. వేయండి ఎంక్వైరీ. ఎవరి మీద వేయాలి? ఓబీ కాంట్రాక్టర్ల మీద వేయాలి ఎంక్వైరీ. డీజిల్ మింగే దొంగల మీద వేయాలి ఎంక్వైరీ. మీద వాళ్ళు అన్ని పంచుకునేటటువంటి కరప్ట్ అధికారుల మీద వేయాలి ఎంక్వైరీ. కరప్ట్ నాయకుల మీద వేయాలి. పైరవీలు చేసి అందులో కాంట్రాక్టులు సంపాదించుకున్నాడు. కష్టపడి చెమటోడ్చేటటువంటి కార్మికుడి మీద కాదు వేయాల్సింది. మీరు మీ ప్రతాపం వీళ్ళ మీద కాదు చూపించాల్సింది. సింగరేణి బొగ్గును మింగుతున్నటువంటి దొంగల మీద వేయాలి. అవి పక్కకు పెట్టి కార్మికులను ఎట్లా తీసుకున్నారు ఎంక్వైరీ చేస్తా అంటే అసలు ఏమన్నా మత్తున్న మాటనే నాది. క్షమించాలి, నాకు బాగా గౌరవం ఉండే బట్టి విక్రమార్క గారు అంటే, కానీ మొన్న అసెంబ్లీలో సింగరేణి విషయంలో బట్టి విక్రమార్క గారు మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. डीजीपी तेलंगाना पुलिस सीवी आनंद ने चंचलगुड़ा जेल और उससे मुत्तसिल गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस का तफसीली दौरा और मुआयना किया. जेल के उमूर पर जानकारी हासिल की और ज़ेर इल्तिवा मसाइल और दरकार फंड्स पर मुश्तमिल एक बातचीत भी पेश आई. गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के दौरे के मौके पर ख़दीम प्रिंटिंग मशीनरी, खस्ता हाल इमारतों और फर्नीचर के अलावा बोसीदा छतों को देखकर हैरत भी हुई. फिलहाल गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में सालाना डायरी, कैलेंडर्स, बैलेट पेपर्स, किताबें, पर्चे सवालात और बिल बुक वगैरह की ही छपाई हो रही है. स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है. सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त. खुदा हाफिज़.